الحمدللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ صدق اللہ العظیم۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی اس آیہ مقدسہ کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ذکر خیر فرمایا ہے۔ اس آیہ مقدسہ کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہم اس کا شان نزول پڑھ دیں گے کہ اللہ رب العزت نے یہ آیہ مقدسہ نازل کب فرمائی اور کیوں فرمائی۔ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بنی نذیر کے مال آئے اور آپ کے قبضہ قدرت میں وہ پہنچ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں تصرف کرنے سے پہلے، اس کو تقسیم کرنے سے پہلے ثابت بن قیس کو بلایا اور ان کو فرمایا کہ آپ جائیں اور اپنی قوم کو بلا کے لائیں۔ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں خزرج کو بلاؤں یا کہ انصار کو بلاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اوس اور خزرج سب کو بلا کے لے آؤ، ساری قوم کو لے آؤ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان فرمائی، پھر انصار کی قربانیوں کا ذکر فرمایا کہ جب مہاجرین یہاں پہ تشریف لائے تو انصار نے کس طرح سے اپنا جان مال ساری چیزیں اپنے مہاجر بھائیوں کو دیں اور ان کے لیے قربانیاں دیں۔ ان کا ذکر فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو یہ مالف ہے جو ہے اس کو یکجا کر دیا جاتا ہے اور پھر ان سب کو مہاجرین اور انصار میں برابر برابر تقسیم کر دیا جاتا ہے کہ جو مال پہلے تم نے مہاجرین کو دیا ہے وہ ان سے واپس لے لیا جاتا ہے، جو مال اب آیا ہے یہ بھی اس میں ملا دیا جاتا ہے اور پھر یہ سارے کا سارا مال مہاجرین پہ اور انصار پہ سب پہ برابر برابر تقسیم کر دیتے ہیں۔
جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری مرضی ہو تو تمہارے مکانات، زمینیں جو تم نے مہاجرین کو دے رکھی ہیں وہ تمہیں واپس کر دیے جائیں، اور بنی نذیر کے جو مال آئے ہیں وہ مہاجرین میں تقسیم کر دیتے ہیں ہم۔ اس پر جواباً انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جو مال ہم نے ان کی بارگاہ میں پیش کیا ہے وہ ان کے پاس رہنے دیں، جو مال ابھی آیا ہے یہ بھی آپ ان میں تقسیم کر دیں۔ اس پہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے باری تعالیٰ تو انصار پہ رحم فرما کہ انہوں نے تیری رضا کے لیے اپنا سارا مال جو ہے وہ خرچ کر دیا ہے، اور انہوں نے دل میں مال کی ہوس اور ہرس نہیں رکھی۔ اللہ رب العزت نے اس تقسیم کو قرآن کریم میں ذکر فرمایا کہ انہوں نے وہ مال کس طرح سے تقسیم کیا اور انصار کا رویہ کیا تھا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، کہ وہ مال جو نادار مہاجرین کے لیے ہے، الذین اخرجوا من دیارہم، جن کو جبراً ان کے گھر سے نکال دیا گیا، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب گھروں کو چھوڑ کے نکلے تو انہیں جبراً نکالا گیا، وہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اپنا مال، دولت، کاروبار، بیوی، بچے سب کچھ چھوڑ کے نکل گئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انہیں نکال دیا گیا۔ وَأَمْوَالِهِمْ، اور ان کی جائیدادوں سے، کس لیے؟ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ، وہ اللہ رب العزت کا فضل تلاش کرنے والے تھے، وَرِضْوَانًا، اور اس کی رضا چاہتے تھے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور یہی وہ مہاجر ہیں جو اللہ رب العزت کی مدد کرنے والے ہیں اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرنے والے ہیں۔ وہ نادار گھروں سے نکالے گئے ہیں اور وہ بے سر و سامان ہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے میرے بھی مددگار ہیں، میرے رسول کے بھی مددگار ہیں، اور وہ میری رضا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے ساتھ یہ پیار والا معاملہ رکھتا ہے۔ اس کے برعکس وہ شخص جو ان کے بارے میں کوئی خلش رکھتا ہے، کوئی خراب گمان رکھتا ہے، اسے سوچنا چاہیے کہ جو میرا ایمان ہے وہ کہیں مجھے خرابی کی طرف تو نہیں لے کے جا رہا، جس پہ میں اعتقاد کر کے بیٹھا ہوں، جس پہ میں بھروسہ کر کے بیٹھا ہوں۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک هم الصادقون، یہی وہ سچے لوگ ہیں، یہی وہ راست باز ہیں، یہی وہ حق پہ قائم دائم رہنے والے لوگ ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے پھر انصار کا ذکر فرمایا والذین تبوؤا الدار، اور وہ لوگ جو مقیم ہیں دار ہجرت میں، یعنی مدینہ المنورہ میں، پہلے سے انصار وہاں پہ موجود ہیں، والایمان، اور وہ ایمان والے بھی ہیں، کہ وہ لوگ جو دار ہجرت میں مقیم ہیں اور ایمان میں ثابت قدم ہیں اور پہلے سے وہاں پہ رہ رہے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کا ذکر فرمایا یحبون من ہاجر الیہم، جو ان کی طرف ہجرت کر کے آتا ہے وہ اس سے محبت کرتے ہیں، ولا یجدون فی صدورہم حاجہ، اور اپنے دل میں وہ
खुटियाई नहीं जानते, खराबी महसूस नहीं करते, खलश महसूस नहीं करते, अपने दिल के अंदर वो किसी किस्म का नक्श नहीं जानते कि अब ये एक और बंदा आ गया है तो हमें फिर कुर्बानी देनी पड़ेगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि वो ये नहीं सोचते, बल्कि वो मोहब्बत करते हैं कि जितने भी आ रहे हैं हमारा सारा कुछ इनके लिए हाजिर है। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, वयूसिरून अला अनफुसिहिम, और वो मुहाजिरीन को अपने आप पे तरजीह देते हैं, अपने आप पे तरजीह देते हैं। वलऊ काना बिहिम खिसासा, अगरचे उन्हें खुद इसकी शदीद ज़रूरत होती है। इसार नाम ही कुर्बानी का है कि बंदे को खुद ज़रूरत है और बंदा फिर उसको दूसरे पे तकसीम करे, बंदा फिर उसको दूसरे के सामने रख दे कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है बल्कि तुझे ज़्यादा ज़रूरत है, तू इसे इस्तेमाल कर ले। इस एसार और कुर्बानी को अगर देखना है तो वो सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन जब मक्कातुल मुकरमा से मदीना तैयबा हिजरत करके गए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी गवाही दी है खुद कि वो दिल में कोई खुटियाई नहीं रखते, वो खुश होते हैं, मोहब्बत करते हैं और अपनी ज़रूरियात पे उनकी ज़रूरियात को तरजीह देते हैं। तरजीह देते हैं किस अंदाज से कि अगरचे हमें ज़रूरत है लेकिन इसके बावजूद हमारे भाई को ज़्यादा ज़रूरत है, हम उसकी मदद करते हैं। यही नहीं, सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन मैदान कारज़ार में ग़ज़वात के अंदर देखा गया कि तलवारों के ज़ख्म लगे, एक ने अर्ज़ की और निदा लगाई कि मुझे पानी चाहिए, पानी पिलाने वाला उसके पास पानी लेके पहुंचा, दूसरी तरफ से आवाज़ आई कि मुझे चाहिए, उसने कहा मुझे ज़रूरत नहीं है, उस अगले बंदे को पिलाओ। और इसी तरह से दर्जा बदर्जा ये सिलसिला चलता गया और एक दूसरे के ऊपर वो कुर्बानी देते चले गए और जब वापस लौट के देखा तो वो सारे के सारे रुतबा शहादत पे फायज हो चुके थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि ये वो प्यार है, ये वो मोहब्बत है जो ईमान वालों का आपस में होना चाहिए। अब हम ये कहते हैं कि नेकी पता नहीं कबूल होती है या नहीं होती। नेकी वही है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मकबूल हो जाए और मंजूर हो जाए, चाहे वो कुछ भी है, वो कोई भी अमल है जो उसने अपनी बारगाह में पसंद कर लिया उसे वो नेकी का दर्जा दे देता है। इसकी सादा सी मिसाल आप यूं ले लें कि सफ़ा मरवा पे हज़रत हाजरा ने चक्कर लगाए पानी की तलाश में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे पसंद कर लिया और फरमाया कि ये नेकी है, जितने भी लोग आ रहे हैं हज के लिए उम्रा के लिए तुमने चक्कर लगानी है, ये उसकी कबूलियत है जिसे वो कबूलियत का शर्फ अता फरमा। अब इबादत नेकी इंसान कैसे कर सकता है? जितना मुमकिन हो सके वो उसके सामने झुक जाए, मिट जाए, अपनी आजिज़ी और इनकिसारी पेश कर दे, उतनी ही वो नेकी है, उतनी ही वो उसके सामने बरतरी है। जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि इन अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, कि तुम में इज्जत वाला वो है जो मुझसे डरता है, जितना डरता है उतना ही वो ज़्यादा मेरे यहाँ मकबूल भी है, मंजूर भी है। यही हमने बुजुर्गों की सिफ्त भी देखी है कि वो ज़ाहिरन तो कहते हैं कि जी इन्हें क्या मसला है कि ये जो भी आता है उसकी बात मानते हैं और उसकी बात पे फ़ौरन लब्बैक कहते हुए उसके साथ चल देते हैं, उसका काम कर देते हैं और साथ आर्जी इनकिसारी भी पेश करते हैं। वो हकीकत में ये देख रहे होते हैं कि इसको हमारे पास भेजने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है, ये मखलूक अल्लाह ताला की है, इसको मेरे ज़िम्मा करम पे डाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने है और मुझे उसने इख्तियार दिया है कि मैं इसकी आदत पूरी कर सकता हूँ, तो लिहाजा मुझे पूरी करनी चाहिए। शाह न्याज बरेलवी फरमाते हैं कि बंदगी और हक परस्ती कुछ ना होना है न्याज, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को एक जानना और उसकी इबादत करना ये अपने आप को मिटाने का नाम है। सजदा करने के अंदर भी यही है कि पेशानी तेरी खाक आलूद हो रही है
तो हकीकत में तू सब चीज़ों को छोड़ के उस खालिक हकीकी के सामने अपने आप को पेश कर रहा है। अगर इसके बरक्स सिर्फ ये हरकत का नाम है तो ये जिम वाले ढेर सारी हरकतें करते हैं, सर उल्टा भी नीचे लगाते हैं, सीधा भी लगाते हैं, दाएं से भी लगाते हैं, बाएं से भी लगाते हैं, लेकिन वो कोई फ़ायदा उनको नहीं देता सिवाय ज़ाहिरी जिस्मानी फ़ायदे के। इसी तरह से नमाज जो है ये निहायत आर्जी और इनकिसारी उस खालिक हकीकी के सामने पेश करनी है। अगर सिर्फ हरकत का नाम है तो उसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि तुझे कोई फ़ायदा मुयस्सर नहीं आ सकेगा। आगे आप फरमाते हैं कुछ न होने के सिवा और हक परस्ती कुछ नहीं, कि अगर तू अपने आप को मिटा देगा, फना कर लेगा और निहायत आजिज़ और इनकिसार हो जाएगा, फिर तू बाकी रहेगा। और यही हक परस्ती है, ये उस खालिक हकीकी को वाहिद खालिक और मालिक यकता मानने का नाम है। रूमी फरमाते हैं कि जो एसार है, कुर्बानी है, ये जगह जगह छुपी हुई है, इसके ढेरों निशान हैं, लेकिन इनको देखने की ज़रूरत है। और वो देखने के लिए तुझे ईमान वाली आँख चाहिए, नूर वाली आँख चाहिए, तुझे रोशन ज़मीर चाहिए। जैसे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़ुकिरल्लाह, जब तुम उन लोगों को देखते हो तो तुम्हें अल्लाह याद आ जाता है। अब वो जो अल्लाह की याद आती है बंदे को देखने के साथ, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसीलिए रखी है कि वो नेकी है, वो इसार है, वो कुर्बानी है कि वो सारा कुछ छोड़ छाड़ के एक खालिक हकीकी के लिए सब कुछ छोड़ के बैठे होते हैं। रूमी फरमाते हैं कि सद निशां बाशद दुरू एसार रा, अब फरमाते हैं सद निशां बाशद दरू एसार रा, के एसार के अंदर ढेरों निशानात छुपे हुए हैं, ढेरों अलामात छुपी हुई हैं। सद अलामत हस्त नेको कार रा, नेक लोगों की भी सैकड़ों अलामात हैं, लेकिन उन्हें देखने की ज़रूरत है। उनको देखने के लिए तुझे ईमान वाली नज़र चाहिए, और ईमान वाली नज़र जिसे नसीब हो जाती है वो फिर हर बंदे को अपने से आला समझता है, अपने से अच्छा समझता है और अपने ऊपर उसको फौकियत देता है। वो किसी को भी कम तर नहीं समझता। जैसे वो फरमाया गया है कि खिलौना समझ के ना बिगाड़ो इसे, ये मिट्टी की मूरत बड़ी चीज़ है, कि जो ये इंसान है इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अशरफुल मखलूक़ात मसरूद मलाइका ऐसे नहीं बनाया, इसके अंदर उसने अपना हुक्म रखा है। रूह अमरे रब्बी है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म जो है वो कदीम है और वो पाक है, और रूह जो है वो पाक है। लिहाजा इस जिस्म के साथ जो रूह है वो इज़्ज़त वाली है। जितनी देर भी वो इस जिस्म में रहती है वो इज़्ज़त के साथ रहती है। जब बंदे से वो जुदा हो जाती है उसकी इज़्ज़त फिर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखी है कि इसके साथ मेरा हुक्म मुतल्लिक रहा है, लिहाजा सब ने इसकी इज़्ज़त करनी है। हाथ पान के सारे अमीर गरीब छोटे बड़े उसके सामने खड़े होते हैं और उसके लिए दुआ कर रहे होते हैं, चाहे वो नेक है, गुनाहगार है, आजिज़ है, मस्कीन है, जो भी है, सारे उसके सामने खड़े होते हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इज़्ज़त रखी है। आप फरमाते हैं कि यही इज़्ज़त, यही इनकिसारी, यही एसार, यही एक दूसरे के लिए कुर्बानी अगर तू जिंदा रहते हुए कर लेगा तो ये तेरे लिए ज़्यादा बेहतर हो जाएगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तेरे दिल की आँख खोल देगा। आगे आप फरमाते हैं माल दर एसार अगर गर्दत तलफ,
دردنو سد زندگی آیت خلفا. آپ فرماتے ہیں کہ مال در ایثار اگر گردت تلف، ظاہری طور پہ کسی کے لیے اپنی ضرورت پہ ترجیح دینا کہ مجھے اس کی ضرورت ہے لیکن میرے دوسرے بھائی کو زیادہ ضرورت ہے، لہٰذا میں اس کے لیے قربانی پیش کرتا ہوں، ایثار کرتا ہوں اور اس کی ضرورت پوری کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ ظاہری طور پہ یہ تو ایسے ہے کہ مال کو تو خود ضائع کر رہا ہے اور اپنے کام میں نہیں لا رہا. آپ فرماتے ہیں کہ اگر ایثار کا مطلب مال کو ضائع کرنا ہوتا، در دروست زندگی آیت خلف، پھر اس کے بدلے ہزاروں زندگیاں تجھے میسر نہیں ملنی تھی. جس طرح سے اللہ رب العزت نے شہید کے بارے میں فرمایا ہے کہ شہید ایک جان دے کے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جو حیات حاصل کرتا ہے وہ عام زندگی سے ایک ماورا چیز ہے، وہ عام بندے کی سمجھ سے بالا تر ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، او من کان میتن، کیا وہ جو مردہ تھا، فاحییناہ، پھر ہم نے اسے زندہ کیا. یہ زندگی اور موت ایمان اور کفر ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو زندگی ہے وہ ایمان ہے، جو موت ہے وہ کفر ہے، تاریکی ہے، اندھیرا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پہلے جو مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کیا. وجعلنا لہ نورا یمشی بہ، اور ہم نے اس کے لیے بنا دیا نور جس سے وہ چلتا ہے. پہلے وہ کسی اور نظر سے کائنات کو دیکھتا ہے، اب وہ اللہ رب العزت کے عرفان کے جلوے حاصل کرتا ہے اور نظر سے دیکھتا ہے. نور وہی ہے لیکن اب دیکھنے کا فرق آ گیا ہے. آگے آپ فرماتے ہیں کہ کمم مثلہ، کیا کوئی اس جیسا ہو سکتا ہے، فی الظلمات، اندھیروں میں، کہ وہ بندہ جو نور کے اندر چلتا ہے لوگوں کے درمیان، تو دوسرا بندہ جو اندھیروں میں پڑا ہوا ہے، کفر میں پڑا ہوا ہے، ظلمات میں پڑا ہوا ہے، کیا وہ اس جیسا ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. لیسا بخارج منہا، وہ جو اندھیروں میں پڑا ہوا ہے وہ اسے اس تاریکی سے نکال نہیں سکتا. جو اس بندے کو نور عطا کیا گیا ہے اس کے مقابلے میں وہ جو دوسرا بندہ ہے وہ نور والا نہیں ہے، وہ نہیں آ سکتا. آگے آپ اللہ رب العزت فرماتا ہے کذالک زین للکافرین، اور اسی طرح سے آراستہ کر دیے گئے ہیں کفار کے لیے ما کانوا یعملون، جو وہ کام کرتے ہیں، کہ ظاہری طور پہ تو انہیں وہ کام بڑے اچھے اور بھلے دکھائی دے رہے ہیں لیکن حقیقت میں ان کاموں کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ بندہ جو مردہ تھا پھر ہم نے زندہ کیا، اس کے لیے نور بنا دیا، وہ اس نور میں چلتا ہے اور لوگوں کے درمیان چلتا ہے. کیا اس جیسا کوئی ہو سکتا ہے؟ اس کے برعکس جو اندھیرے میں پڑا ہوا ہے اور اسے وہاں سے کوئی چیز نہیں نکال سکتی جو اندھیرے کے اندر پڑا ہوا ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اسی طرح سے ہم نے کفار کے لیے ان کے اعمال آراستہ کر دیے ہیں کہ انہیں وہ ظاہری طور پہ تو بڑے اچھے نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ اس میں اٹے پڑے ہیں، وہ ان کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتے. رومی فرماتے ہیں کہ یہ عمل جو ہے ایثار والا، یہ تجھے ظاہری طور پہ تو بڑا گمبھیر دکھائی دیتا ہے کہ میں اگر یہ کروں گا تو اس سے تو پھر مال ختم ہو جائے گا. آپ فرماتے ہیں کہ لیکن اس سے اللہ رب العزت ایک نئی جان پیدا کرتا ہے، نئی زندگی پیدا کرتا ہے، اور وہ جو زندگی عطا کرتا ہے وہ پھر کئی زندگیوں سے بہتر ہوتی ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس کی مثال بھی بیان فرمائی. اللہ رب العزت نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، مثل الذین ينفقون اموالهم، کہ وہ لوگ جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مال خرچ کرتے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں،
कमासली हब्बतिन, उनकी मिसाल ऐसे है कि जैसे एक दाना है, अम्बतत सबा सनाबिला, जो ज़मीन में लगाया गया और ज़ाहरी तौर पे ऐसे ही है कि जैसे ज़ाया कर दिया, और जब वो दाना फूटता है तो उससे 7 शाखें निकलती हैं, फिर हर शाख के अंदर 100 दाना होता है और वो 1 से 700 दाने बन जाते हैं। ज़ाहरी तौर पे तो वो दाना किसी को खिला के उसकी पेट भर के ज़रूरत पूरी की जा सकती थी, लेकिन उसको जब ज़मीन में डाला गया उससे 700 दाने निकले। आप फरमाते हैं कि इसी तरह से जब तू अपने भाई के लिए कुर्बानी देगा, अपनी ज़रूरत पे उसकी ज़रूरत को तरजीह देगा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुझे वो 700 करके वापस करेगा। तू ज़ाहरी तौर पे तो देख रहा है कि मैं ये ज़ाया कर रहा हूँ, लेकिन हकीकत में वो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के साथ सौदा कर रहा है और वो सौदा बड़ा कामयाब है। आगे आप फरमाते हैं कि दर ज़मी हक ज़रात गर्दने हक जरा करदनी तू कमाए दखल आप फरमाते हैं कि ये तो एक ज़ाहरी ज़मीन की मिसाल है जिसमें तू खुद हाल चलाता है, खुद तैयार करता है और तुझे वो एक दाने के बदले 700 दाने अता कर रही है। इसके बरक्स वो ज़मीन जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खेती है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़मीन है, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मैं किसी जगह पे नहीं समाता आसमान और दुनिया में, सिवाय ये कि मोमिन का जो दिल है वो मेरा मस्कन है, उसमें मैं समाता हूँ। आप फरमाते हैं कि वो जगह जहाँ पे वो ज़ात जलवागर है, वो उसकी खेती है, वो उसकी ज़मीन है, और उसमें डालने वाला बीज जो है वो भी पाक है, नूर ईमान है, तो फिर कैसे मुमकिन है कि उससे तुझे ज़्यादा नफ़ा नहीं मुयसर आएगा। एक सादा सी ज़ाहरी ज़मीन तुझे नफ़ा दे रही है और जो पाक ज़मीन है, पाक बीज है, वो क्या तुझे नफ़ा नहीं देगा। आप इस पे फिर बयान फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि अगर जान की खेती में एक दाना से 100 दाने नहीं बन सकते, जो तो फिर कैसे मुमकिन है कि जो ज़मीन के अंदर जो तू खेती के बीज डाल रहा है उससे तुझे 100 दाने मुयसर आएंगे। आप फरमाते हैं कि वहाँ पे भी कारीगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है, लेकिन दिल की जो ज़मीन है वहाँ पे जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है वो खुद जलवागर है, उसके अंदर तो ईमान पुख्ता कर, वो तेरे लिए ज़रूर सबब पैदा करेगा और तेरे लिए ज़रूर राहें खोल देगा। लेकिन तेरे लिए ज़रूरी ये है कि तू एसार करने का तरीका सीख, अपनी तरजीहात पे दूसरों को फौकियत दे कि मेरी ज़रूरत कुछ नहीं है, दूसरे भाई जो हैं इनकी ज़रूरत ज़्यादा है, लिहाजा मैंने इनके काम आना है। फिर तेरे काम जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सीधे करता रहेगा। आगे आप फरमाते हैं, असल अर्दुल्लाह कल्बे आरिफस्त, दाना सदा सहने के बहुत अब फरमाते हैं कि असल अर्दुल्लाह कल्बे आरिफस्त, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़मीन आरिफ का दिल है, कि जो मोमिन है उसका दिल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का मस्कन है, जो जिहतों से पाक है, कि कहें कि वो ऊपर है, वो दाएं है, बाएं हैं या नीचे है, नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिहत से पाक है, और जो चीज़ जिहत से पाक होती है वो सबसे ज़्यादा करीब होती है कि वो
कहता है कि वासुद वक्त करीब सरदा कर मेरे करीब हो जा, मैं तेरी चार आग से भी तेरे ज्यादा करीब हूँ। आप फरमाते हैं कि जब वो तेरे अंदर सरायत किया हुआ है, फिर भी तुझे शक है कि अभी भी कि मैं कुछ करूंगा तो वो मुझे फायदा देगा या नहीं देगा, मैं नेकी करूंगा तो पता नहीं कबूल होगी या नहीं होगी, मैं जो काम करूंगा पता नहीं उसके काम आएगा या नहीं आएगा। आप फरमाते हैं कि इसके बरक्स तेरे अंदर ये गुमान और ख्याल पैदा होता है कि मैं अब सारे का सारा माल बस अल्लाह के लिए रखा है और कोई काम नहीं है करने के लिए। आप फरमाते हैं कि सारा दिया हुआ उसी का है, तेरा वजूद जो है वो एक चीज का भी तू मालिक नहीं है। अभी तेरी हवा निकल जाए, वो सारी चीजें वहीं पे धरी की धरी रह जाएंगी, तुझे कुछ काम नहीं आ सकेंगी। वो जो सारे असबाब जिन पे तू भरोसा करके बैठा है और कहता है कि मैंने इनको अपने तरीके से सलीके से तकसीम करना है ताकि सबको फायदा हो सके। आप फरमाते हैं कि तेरा वो तरीका सलीका जो है वो खत्म हो जाएगा और सबको फायदा भी तू जैसे पहुंचाना चाहता है पहुंचा नहीं सकेगा। बेहतर ये है कि तू दिल की जमीन के अंदर ईमान वाला बीज भी बो और अपने आप की ज़रूरियात पे सारे लोगों को तरजीह दे कि सारे मुझसे बेहतर हैं, सब के मैंने काम आना है, मेरे काम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़िम्मा करम पे है, वो सारे के सारे तेरे काम करता रहेगा। जिस तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में ईमान की भी मिसाल दी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलम तरा कैफ़ दरबल्लाहु मसला, क्या आपने नहीं देखा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में कैसी अच्छी मिसाल दी है। कालिमतन तय्यिबतन, पाकीज़ा कलिमा, का शजरतिन तय्यिबतिन, जो पाकीज़ा दरख्त के मानंद है, अस्लुहा साबितुन व फरउहा फिस्समा, उसकी जड़ पक्की ज़मीन में लगी हुई है और उसकी शाखें आसमान में बुलंद हैं। ये वो पाकीज़ा दरख्त ईमान का दरख्त है जिसकी जड़ें ईमान वाले बंदे के दिल में गड़ी हुई होती हैं, जो उसे बुलंद करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अर्श तक पहुंचा देती हैं। बैठा वो फर्श पे है, खबरें वो अर्श की देता है, बैठा वो फर्श पे है और उसके जो तसर्रुफ है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फर्श का रखा हुआ है कि जिसको चाहे जो अता कर दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि जो कहता है कर दो, क्योंकि वो अपने लिए कुछ तलब नहीं करता, वो सारे का सारा उसकी मखलूक के लिए तलब करता है। जिस तरह से रूमी फरमाते हैं कि हर दो आलम कीमते खुद गुफ्ताई, कि तू ये कहता है कि दोनों जानों की दौलतें मुझे मुयस्सर आ जाएं तो बस मेरा काम बन जाएगा। आप फरमाते हैं कि नहीं, बड़ा सस्ता सौदा कर रहा है। निर्ख बाला कुन करदानी हुरूज, थोड़ा सा और बढ़, तू उस खाल के हकीकी को मांग जो सारे जानों को पैदा करने वाला है, कि वो खाल के हकीकी मेरी कीमत है, अगर वो मिल जाए तो फिर मैं सारा काम छोड़ दूंगा। मेरी कीमत जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है, मैंने उसके लिए अपने आप को वक़्फ़ करना है। चे जाए कि तू कहता है कि ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए और मेरी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। आप फरमाते हैं कि बड़ा सस्ता बिक रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुझे मसजूद मलाइक बनाया है, तुझे अशरफुल मखलूक़ात बनाया है और तूने दोनों जानों की नेमतों की अपनी कीमत लगा के अपने आप को तूने बेच दिया है। आप फरमाते हैं कि ये तेरे लिए दुरुस्त नहीं है। तेरे लिए दुरुस्त ये है कि तू उससे उसकी ज़ात का सौदा करके, बारी ताला मैं तेरे साथ तेरी ज़ात का सौदा करता हूँ, तू मुझे मुयस्सर आएगा तो मैं कामयाब हो जाऊँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि हमें नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक उसवे हसना पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए, हमारे दिलों को अपनी पाक ज़ात का नूर अता फरमाए और हमारे दिलों का रुख अपनी पाक ज़ात की तरफ करके हमें गुनाहों से तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। शाह चरब गरबा नवाज़न गदारा, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार।